Good morning children. Today in this video we will discuss about the basics of internet. Children, basics of internet we have gone through, but we are left with few more topics. That is, the first topic that we are going to discuss is search engine. After that we will be learning about what is a web browser, then types of web browsers. After that we'll be discussing about what is Microsoft Internet Explorer, and later we'll discuss about what are the different components or contents in a Microsoft Internet Explorer. Clear? Children, the first thing that we are going to discuss is search engine. Children, basically search engine is a program that is used for searching the information on the internet. सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है that is used for searching the information on internet. इंटरनेट पे जो हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं that is done with the help of the search engine. And we have got different types of search engines, like we have got Google, we have got Yahoo, we have got Bing. These all Google, Yahoo and Bing. There are many more, but these are the most popular search engines. So what you need to learn about search engine is, it is basically a program that is used for searching or finding out the information on world wide web or internet. Clear? इंटरनेट पे जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो किसके जरिए से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस सर्च इंजन. क्लियर? तो हमारे पास वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, लाइक we have got this Google, we have got Yahoo, we have got Bing. So all these things, for example, if I type here google.com, then we say this Google page, this is a search engine. It's a web page, and this Google is typically a search engine. So whatever the information I have to type, for example, I'll be typing here photosynthesis. So photosynthesis, I'm clicking over here and I'll get the information related to photosynthesis like these. See, different video links, information, websites. तो जो भी मुझे ठीक लगेगा कि मेरे हिसाब से मुझे information चाहिए था photosynthesis के related, so all that I'll get over here. Clear? So this what I have done, I have used the search engine that is Google. If I can use Yahoo as well. I have to type yahoo.com. Clear? So it will display the Yahoo search engine. From here I can search. This is a Yahoo search engine, and we can search the information on the Yahoo as well. Clear? From here. Similarly, Bing is one more important search engine. From that we can also search for the information, any particular topic. Clear? After that we have got the web browser. Children, web browser is nothing, it is also a software program. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ओपन किया ये गूगल क्रोम यहाँ पे, ठीक है. तो गूगल क्रोम क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है. यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं, और ये भी एक वेब ब्राउज़र है. तो या हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स दूसरा वाला है. तो बहुत सारे ऐसे, या ओपेरा है. तो हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके ज़रिए से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं. लाइक वी कैन ब्राउज द इंटरनेट. हम इफ़ वी हैव टू एक्सेस द इंटरनेट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज वेब ब्राउज़र्स. या इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज़ कर सकते हैं, या गूगल क्रोम, या मोजिला फायरफॉक्स. Children, what you need to know about this web browser is that it is a software program. एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मतलब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. उसके बाद I told you the different types, like we have got Google Chrome. This one is called Google Chrome. This is called Internet Explorer, and we have not installed one Mozilla Firefox or Opera in this computer system. So we have got here in this computer system two web browsers. One is Google Chrome, this one, and second one is Internet Explorer. So we can access the internet with the help of these web browsers. तो जो भी मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्च करनी है, तो मैं वो किसके ज़रिए से यूज़ कर सकता हूँ, किसके ज़रिए से हासिल कर सकता हूँ? वेब ब्राउज़र्स के. तो वेब ब्राउज़र एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तब जाके मेरे पास क्या हो सकता है, हम इंटरनेट चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेब ब्राउज़र. अगर वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो हम इंटरनेट नहीं चला सकते. क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर APS Srinagar.co.in.
क्लियर, APS-Srinagar.co.in, क्लियर। तो मैंने ये एक वेबसाइट यहाँ पे स्कूल की जो है यहाँ पे मैंने एक्सेस की, तो उसके बाद ये वेब पेज आ गया जिसे हम होम पेज कहते हैं। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, क्लियर। नाउ these all things I told you, this is the home button, these all things are the tabs that are present on a web page। तो अगर हम किसी और पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो विद द स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्कूल यूनिफॉर्म के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। या ये देखो स्कूल यूनिफॉर्म पे मैंने क्लिक किया था तो उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म वाला पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसी तरह तो इस कहने का मतलब है कि मैंने एक लिंक पे क्लिक किया तो दूसरे पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया, तो उससे मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आई हैव क्लिक्ड ऑन द हाइपर लिंक, क्लियर। नाउ in our syllabus we have got the Microsoft Internet Explorer. We will access the internet with the help of this Internet Explorer, clear। तो Internet Explorer I already told you this is developed by Microsoft in 1995, ठीक है। We call it IE और Internet Explorer और Microsoft Internet Explorer, क्लियर। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो होम पेज में मैंने क्या रखा था, google.com, तो ये अभी इंफॉर्मेशन क्या गूगल पेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे कैसे आ गया, मैं एक बार फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद एक विंडो आ गया, तो जिससे मैं क्या कह सकता हूँ, जिससे मैं क्या कहूँगा कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो है, ठीक है। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। वी हैव गॉट द फर्स्ट वन दैट इज एड्रेस बार, चिल्ड्रन दिस वन, जहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग ओवर हेयर गूगल, नॉट गूगल, इफ आई एम यूजिंग APS-Srinagar.co.in, तो कहने का मतलब है जिसमें मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है, इससे हम क्या कहते हैं, एड्रेस बार और इंस्टेंट सर्च बॉक्स, क्लियर। नाउ आई विल प्रेस एंटर, इट विल गेट डिस्प्लेड, आई मीन द स्कूल वेबसाइट विल गेट डिस्प्लेड ओवर है, देखो, क्लियर। तो आपने याद क्या रखना है इसमें, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बार है जिससे हम एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार में हम क्या करते हैं, वी टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, क्लियर, एंड दैट वी आल्सो कॉल्ड द URL। आफ्टर दैट इज एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट हमें कहाँ से पता चलता है, ये देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जैसा आता है, एरो जैसा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी वेबसाइट्स हमने एक्सेस की है इसमें, तो वो लिस्ट दिखाता है कि कितने सारे वेबसाइट्स यहाँ पे एक्सेस किया है, कहाँ पे विजिट किया गया है, ठीक है। दोज ऑल थिंग्स विल गेट डिस्प्लेड इन द एड्रेस लिस्ट, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट आई विल यूज द बैक बटन, ठीक है, ये वाला, इससे हम बैक बटन कहते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पुराने वाले पेज पे जहाँ पे हम इससे पहले थे। तो आई विल बी क्लिकिंग ओवर हेयर, वी विल गेट रिडायरेक्टेड टू द गूगल, ठीक है। जो गूगल पहले जब मैंने ओपन किया है तो पहला पेज क्या था, ये वाला पेज, तो मतलब इससे पहले मेरा ये वाला पेज ओपन था, तो मैंने बैक एरो पे क्लिक किया तो ये वाला पेज आ गया। अभी अगर मैं फॉरवर्ड एरो पे क्लिक करूंगा तो आई विल बी रिडायरेक्टेड टू द स्कूल वेबसाइट, क्लियर। देखो it is loading over here, and this way you can use the back and forward button. After that is refresh. If you want to refresh or reload the contents, तो यहाँ पे आप ये एरो जो है refresh या F5 फंक्शन की यूज करके यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हो, क्लियर। आफ्टर that is tab. Children, if you want to open another website on your Internet Explorer window, you have to click over here. ये जो है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, न्यू टैब ओपन कर सकते हो। देखो अभी स्कूल की वेबसाइट ओपन है, मैं यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करूँगा, कैसे, न्यू टैब पे। जब मैं न्यू टैब पे क्लिक करूँगा तो ऐसे वाला आ जाएगा, ठीक है। ये जो पेज आपको नजर आ रहा है इससे हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। पहला पेज जो आपके ब्राउजर जब आप ओपन करोगे तो उसमें जो पेज आता है उससे हम होम पेज कहते हैं। तो अब मुझे इस टैब में, इस विंडो में कोई दूसरा वाला वेबसाइट ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा NDTV, तो NDTV की वेबसाइट आई डोंट नो, बट आई विल गेट द सर्च फ्रॉम ओवर हेयर, इट विल डिस्प्ले द NDTV लाइक दिस। I'll be clicking over here and all the contents what are there in the NDTV website, all those things will be displayed over here, clear. I'll close it. See these all things, this is the NDTV website, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होता है, टैब से क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को एक ही साथ ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखो आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट ओपन है, याहू सर्च
वेबसाइट ओपन है उसके